یہ ہے وہ بدنام زمانہ آئی لینڈ جہاں پر فحاشی کا ایک بہت بڑا اڈا کھولا گیا۔ 72 ایکڑ کے اس آئی لینڈ پر تقریباً ہر لگژری موجود تھی۔ یہاں لگژری ریزورٹ سے لے کر پرائیویٹ ڈاگ اور لائبریری سے لے کر سنیما سب کچھ موجود تھا۔ دنیا کی بڑی شخصیات کا اس آئی لینڈ پر جانا آنا لگا رہتا تھا، پر سچ یہ ہے کہ یہاں پر پارٹیز کی آڑ میں کم عمر بچوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ رپورٹس ہے کہ اس آئی لینڈ پر کچھ انڈر گراؤنڈ ٹنل بھی بنے ہوئے تھے اور ان ٹنل کو ایک خاص مقصد کے تحت بنایا گیا تھا۔ یا تو آئی لینڈ کا سٹاف اس ٹنل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال کرتا تاکہ اوپر کی بلڈنگ والے لوگوں کی نظر نہ پڑے، یا تو یہ پھر بڑے بڑے خفیہ مہمانوں کے لیے یہ راستہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر جس کو اس آئی لینڈ کی تکلیف تھی وہ تھی کم عمر کی لڑکیاں اور ان کے پیرنٹس۔ اور ان طاقتور لوگوں کے نام سنتے ہی ان کی کسی کے خلاف جانے کی ہمت نہیں ہوئی، کم از کم کئی سالوں تک تو ان کی ہمت ہی نہیں پڑی۔ لیکن مارچ 2005 میں اس ساری کہانی سے تب پردہ اٹھا جب کورٹنی وائل نام کی ایک لڑکی نے بہادری کا مظاہرہ کیا، فلوریڈا کے پام بیچ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کی، اور وہ رپورٹ تھی ایپسٹین جیفری کے خلاف۔ اس کیس میں پولیس، ایف بی آئی اور ادر ایجنسی نے رپورٹ کے مطابق جب جانچ پڑتال کی تو جو سامنے آیا اس نے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایویڈنس میں شامل تھے بہت ہی اہم شخصیات اور ان کی نامناسب تصویریں۔ اس کے تمام ڈاکومنٹ بنا کر کورٹ میں پیش کیے گئے جسے ایپسٹین فائلز کہا جاتا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ کون تھا جیفری ایپسٹین؟ اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے اور وہ مشہور ترین لوگوں سے رابطہ بنانے میں کیسے کامیاب ہوا؟ سیکرٹ آئی لینڈ کے سیکرٹ ٹنل سے ایف بی آئی کو اور کیا کچھ ملا؟ سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اتنے سیکیورڈ جیل میں جب جیفری ایپسٹین کی موت ہوئی اس رات سی سی ٹی وی کیمرے کا خراب ہونا یا اس کے پیچھے بھی کسی بڑی طاقت کا ہاتھ تھا؟ ناظرین، جب دیکھتے ہی دیکھتے ایک سادہ سا میتھ کا ٹیچر دنیا کا پر اسرار امیر ترین آدمی بن گیا۔ جیفری ایپسٹین نے 1917 بیلٹن اسکول سے شروعات کی، لیکن اس کا اصلی ٹھکانہ وال اسٹریٹ تھا۔ اس نے وکٹوریا سیکرٹ، لیسلی ویکسنر جیسے لوگوں کا جب بھروسہ جیتا اور ان کا پیسہ مینج کرنے لگا، کروڑوں ڈالر کا کمیشن اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ۔ ایپسٹین نے نیو یارک سے لے کر فلوریڈا تک بڑے بڑے بنگلوں کی عالی شان لائن کھڑی کر دی، لیکن اس چمکتی دنیا کے پیچھے ایک تاریخی راز چھپا تھا۔ ایپسٹین اپنے پاور اور پیسے کے ساتھ کم عمر لڑکیوں کا شکار کرتا تھا۔ کہانی کا ایک ایسے شخص کی جو دنیا کے سامنے بلینئر تھا لیکن اصل میں ایک مجرم۔ ایپسٹین کی شاہی زندگی کسی خواب سے کم نہیں تھی، لیکن اس کی اصلی سلطنت کیریبین میں واقع 72 ایکڑ کا جزیرہ تھا، لٹل سینٹس جیم، جسے ہم ایپسٹین آئی لینڈ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر پہنچنے کے لیے ایپسٹین ایک پرائیویٹ جیٹ کا استعمال کرتا جسے میڈیا نے لولیتا ایکسپریس کا نام دیا۔ آئی لینڈ پر ہوتا کیا تھا؟ دعوے کیے گئے ہیں کہ اس آئی لینڈ پر دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی شخصیات آتے جاتے تھے اور یہاں انڈر ایج لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ ایپسٹین کی دنیا میں صرف پیسہ نہیں، دنیا کے طاقتور ترین چہرے بھی شامل تھے۔ بل کلنٹن نے ایپسٹین کے پرائیویٹ جیٹ پر 26 دفعہ سفر کیا، جن میں انٹرنیشنل ٹور بھی شامل تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی 19 میں ایپسٹین کے دوست اور پڑوسی تھے، لیکن بعد میں دونوں میں دشمنی ہو گئی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ میں نے ہمیشہ اس آئی لینڈ پر جانے سے منع کیا ہے، اور سب سے بڑا جھٹکا برٹش رائل فیملی کو لگا۔ پرنس اینڈریو پر الزام تھا کہ انہوں نے 17 سالہ ورجینیا جیفری کو ایپسٹین کے کہنے پر اپیوز کیا۔ پرنس اینڈریو کے ساتھ ورجینیا کی ایک تصویر بھی پوری دنیا میں وائرل ہوئی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اینڈریو کو اپنی رائل ڈیوٹی چھوڑنی پڑی، $16 ملین کا سیٹلمنٹ کرنا پڑا، اور اکتوبر 2025 میں ان سے پرنس کا لقب بھی چھین لیا گیا۔ بل گیٹس سے لے کر ہالی ووڈ سٹار تک ہر کوئی ایپسٹین کے سوشل سرکل میں تھا۔ ایپسٹین کے گھر سے ڈھیروں سیڑیاں اور فوٹوز ملی جس پر یہ بھیانک شک ہوا کہ وہ بڑے لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ حالانکہ قانون کو اب تک کوئی کلائنٹ لسٹ نہیں ملی، لیکن ایپسٹین کے یہ تعلقات آج بھی دنیا کے لیے ایک الجھی ہوئی پہیلی ہے۔ ایپسٹین کے گناہوں کا بھانڈا سب سے پہلے 2005 میں پھوٹا جب فلوریڈا کی کورٹنی وائل نامی لڑکی نے پولیس اسٹیشن میں ہمت کر کے رپورٹ دی۔
पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन ने दुनिया को हिला कर रख दिया। पता चला कि एप्स्टीन एक दो नहीं बल्कि दर्जनों अंडर एज लड़कियों का शिकार कर रहा था। और यहीं से शुरू होता है दुनिया की सबसे बड़ी जुडिशल तारीख का मजाक। 2008 में जब एप्स्टीन को पूरी जिंदगी के लिए जेल में जाना था, तब एक बहुत बड़ी सीक्रेट डील तैयार की गई। बहुत बड़े बड़े महंगे वकीलों ने आपस में समझौता करके तमाम सबूतों को अंधेरे में रखा और एप्स्टीन को बचा लिया। नतीजा ये निकला कि सिर्फ एप्स्टीन को 18 महीने की सजा हुई और हैरत की बात यह है कि उसे जेल में भी VIP ट्रीटमेंट मिला। एप्स्टीन दिन भर अपने ऑफिस में काम करता और रात को सिर्फ सोने जेल जाता था। सिर्फ 13 महीनों के बाद एप्स्टीन पूरी तरह आजाद हो गया। इस डील ने न कि एप्स्टीन को बल्कि उसके ताकतवर साथियों को भी बचा लिया, जिनका नाम अब भी एप्स्टीन फाइल्स में दबा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एप्स्टीन ने एक बहुत बड़ी गलती कर ली। उसका घमंड और गरूर उसे ले डूबा। अपने आप को बचाने के लिए जेफरी एप्स्टीन ने पावरफुल लोगों के साथ ताल्लुक कायम तो किया, लेकिन ये चीज मीडिया ने पकड़ ली और डील की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। जेफरी एप्स्टीन ने सोचा था कि वो पैसों की ताकत पर उन लड़कियों को खरीद लेगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कोर्टनी वाइल के स्टैंड लेने के बाद उसके साथ और भी कई लड़कियां शामिल हुई और उन्होंने भी स्टैंड लिया। उन्होंने 2008 की इस डील को कोर्ट में चैलेंज करना शुरू कर दिया। जुलाई 2009 में एप्स्टीन की एक विक्टिम जेफरी वर्जन ने सिविल लॉ सूट फाइल किया, जिसमें उसने कहा कि एप्स्टीन और गैलेन मैक्सवेल ने मुझे मशहूर लोगों के साथ गलत काम करने पर मजबूर किया। यहाँ आपको बताता चलूं कि गैलेन मैक्सवेल एप्स्टीन की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका इन कामों में बहुत बड़ा हाथ था। उसका काम मासूम अंडर एज लड़कियों को रिक्रूट करना था। स्कूल्स के बाहर लड़कियों को पैसों का बहाना देकर जॉब्स के लिए हायर करती थी। 2010 के बाद ही थोड़ी बहुत खबरें निकलना शुरू हो गईं। एप्स्टीन ने फ्लोरिडा में कैसे अपने लिए सजा खरीदी थी। 2011 में डेली मेल ने जेफरी का इंटरव्यू छाप दिया, जिसमें प्रिंस एंड्रयू का जिक्र था, जिससे शहजादे की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं। फिर 2015 में अमेरिका में भी ये सवाल उठने लगे कि आखिर जेफरी एप्स्टीन को इतनी रियाया क्यों मिली थी। बहुत सालों की खामोशी के बाद 2018 में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया पर वर्जन ऑफ जस्टिस ने फाश किया कि कैसे एप्स्टीन जेफरी की काली करतूतें छुपाकर सारे सिस्टम ने उसे बचाया था। इस रिपोर्ट्स ने अमेरिका में बहुत बड़ी आग सी लगा दी। इस रिपोर्ट के तहत 6 जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया और इस बार कोई भी सीक्रेट डील काम न आ सकी। अदालत ने एप्स्टीन जेफरी को बेल देने से इनकार कर दिया और इस वक्त दुनिया के ताकतवर लोग भी डर रहे थे कि जेफरी एप्स्टीन सबके एक एक करके नाम उगलेगा। लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही दुनिया को हिला देने वाली खबर आई। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी जेल में जेफरी एप्स्टीन की लाश मिली। Epstein was found dead in his jail cell in New York on Saturday. ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि जेफरी एप्स्टीन ने खुदकशी की है, लेकिन हकीकत बहुत अजीब थी। तमाम कैमरास खराब थे, गार्ड सो रहे थे और अचानक जेफरी एप्स्टीन को सुसाइड लिस्ट से हटा दिया गया। अमेरिका की गलियों में ये आवाज गूंज रही थी कि जेफरी एप्स्टीन ने कोई खुदकशी नहीं की है, बल्कि उसे चुप करवाया गया ताकि दुनिया के लिए बड़े नामों के राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। ताकि कानून ने इसे सुसाइड कहा, लेकिन आज भी दुनिया की ये सबसे बड़ी पहेली है। एप्स्टीन की मौत के बाद लोगों की नजरें उसकी करीबी साथी गैलेन मैक्सवेल पर टिक गईं। वहीं एप्स्टीन के लिए नौजवान लड़कियां ढूंढने और उन्हें ट्रेन करने में एप्स्टीन की मदद करती थी। एप्स्टीन के मरने के बाद भी FBI ने अपनी तहकीकात जारी रखी
और 2 जुलाई 2020 को उस औरत को एक दूर से एक फार्म से FBI ने गिरफ्तार किया। जेफरी एप्स्टीन तो मौत की शक्ल में सजा से बच निकला, लेकिन उसकी औरत गैलेन मैक्सवेल कानून के शिकंजे से न बच सकी। नवंबर 2021 न्यूयॉर्क में विक्टिम्स के दिल दहला देने वाले बयानात ने दुनिया को रुला दिया। पता चला कि मैक्सवेल उसकी औरत ही नहीं बल्कि इस सारे ट्रैकिंग मास्टरमाइंड में सबसे ज्यादा काम करने वाली वही औरत थी। जून 2022 में अदालत ने मैक्सवेल को 20 साल कैद की सजा सुना दी। जज ने उस औरत से साफ साफ कहा कि ये बच्चों पर जुल्म करने की सजा है। ग्लेन मैक्सवेल फ्लोरिडा की एक जेल में आज अपनी सजा काट रही है। एप्स्टीन के मरने के बाद उसके विक्टिम्स के लिए उसके पैसों का एक बहुत बड़ा फंड बनाया गया, जिस पैसे में से बहुत से लोगों को 121 मिलियन डॉलर तकसीम किए जा चुके हैं। लेकिन एप्स्टीन की फाइल्स ने 2025 में दुनिया की सियासत में आग लगा दी। जनवरी 2024 में एप्स्टीन की फाइल्स को पब्लिक करने का सिलसिला 2025 में डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनते ही एक नया मोड़ इख्तियार कर गया। ट्रंप ने कैंपेन में वादा किया था कि वो एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज कर देंगे। नतीजा ये निकला कि फरवरी 2025 में जर्नल पाम बॉन्डी ने दावा किया कि क्लाइंट लिस्ट उनकी टेबल पर रखी है, लेकिन जब पहला पेज रिलीज हुआ तो वाम ने इसे मजाक करार दिया क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन असली धमाका 2025 नवंबर में हुआ, जिसने गवर्नमेंट को 19 दिसंबर 2025 की डेडलाइन दी कि अब इस डेडलाइन से पहले फाइल रिलीज करनी है। दिसंबर 25 में ग्लेन मैक्सवेल की कुछ ईमेल्स लीक हुई जिनमें वो कोड नेम इस्तेमाल कर रही थी। कोड नेम था द इनविजिबल मैन। इन्वेस्टिगेशन के बाद FBI को पता लगा कि ये कोई और नहीं प्रिंस एंड्रयू थे, जो कोड नेम के पीछे लड़कियों की तलाश में थे। 20,000 पेजेस की ईमेल्स में जेफरी एप्स्टीन का एक नया दावा सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप लड़कियों के बारे में पहले भी जानता था। व्हाइट हाउस ने इसे एप्स्टीन का झूठ कहा, लेकिन नए रिकॉर्ड ने साबित किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन के जेट पर कई दफा पहले से भी ज्यादा सफर किया था। जब 19 दिसंबर 2025 की डेडलाइन गुजरी तो 30,000 पेजेस का एक नया डाटा रिलीज हुआ, लेकिन अभी भी 1 मिलियन से ज्यादा पेजेस बाकी हैं। अदालत और हुकूमत के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि विक्टिम के पीछे के लोग बड़े बड़े लोगों को बचाना चाहते हैं और कुछ लोग उन्हें सामने लाना चाहते हैं। आज जेफरी एप्स्टीन इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसके गुनाहों का साया बहुत बहुत बड़े लोगों के सर पर मंडरा रहा है। प्रिंस एंड्रयू अपना ओहदा गवा चुके हैं और ग्लेन मैक्सवेल अभी भी जेल काट रही है, और बड़े बड़े लोग एप्स्टीन के लिए अपनी सच्ची गवाहियां दे रहे हैं। 2005 में एक बच्ची की आवाज उठाने वाला ये सफर आज दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल बन चुका है। तो तमाम प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।